After a long time, I'm seeing you're seeing me and I'm seeing you. I think COVID को ठीक होते होते and finally to be out and to be celebrating small little accolades with friends, that means a lot and I'm so happy to be here today. It feels good. आज आपको नॉमिनेट किया गया है, क्या किया गया है, अगर आपको पता है? Okay. ग्लैम स्टाइल के लिए आपको नॉमिनेट किया गया, अगर आप कुछ बताना चाहें तो कितना मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. सी आई ड्रेस्ड अप फॉर द ओकेजन. कैसी लग रही है? थैंक यू. यही सुनना चाहती थी मैं आपसे. थोड़ा सा अपने अटायर के बारे में आप बताना चाहिए. Well, this is a dress. I love to shop. I think मैं कोरोना में बहुत लोगों ने पूछा कि जब आप डिप्रेस्ड होते हैं तो कैसे अपने आप को खुश रखते हैं. मेरे कुछ नुस्खे ये हैं कि मीठा खाओ, अच्छा गाना सुनो, थोड़ी सी शॉपिंग कर लो. Retail therapy always works. So this is one dress that I really loved and it is not a designer creation but it is something that I really love. मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे इनफ लोग हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं एंड इट्स टाइम. जितने भी स्टार्टअप्स थे जो लॉकडाउन में स्टार्ट हुए, गर्ल्स हु लेडीज हु स्टार्टेड कुकिंग फ्रॉम होम, women who started stitching at home, who are doing some classy fab stuff need to be promoted and that's what I am here to. Well, there is 2 series for MX that are going to be releasing very shortly and one for Amazon very soon. जी. अब मैं क्या बोलूँ, एवरी प्रोजेक्ट कम्स विद इट्स ओन डेस्टिनी. ऐसे मेरे खुद के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इतनी कमाल की स्टोरीज़ हैं विच डिड नॉट रीच द काइंड ऑफ ऑडियंसेस जिसके लिए हम बनाते जो भी स्टोरी बनाते हैं यार, वी मेक इट सो दैट मोर पीपल सी इट, दे लव इट. बहुत मेहनत लगती है कोई भी सीरीज़ फिल्म बनाने के लिए एंड आई थिंक इट्स जस्ट डेस्टिनी. एवरी फिल्म, एवरी प्रोजेक्ट, एवरी वेब सीरीज़ कम्स विद इट्स ओन डेस्टिनी. सो उसमें क्या ही बोलूँ. थैंक यू सो मच. I always look beautiful. But yeah, thank you so much for the compliment. And yes, this is entirely different from our industry. We belongs to the entertainment industry, but not everyone is aware of. But then I'm an entrepreneur as well. I used to run a cafe. So I am related to something like that only here. So not entertainment today, but it's all about business today. अच्छी लग रही हूँ ना आज भी, स्टाइल आइकॉन ही लग रही हूँ ना. सी ऑलवेज थैंक यू. Nothing, I'm just blessed and thank you so much for giving me that position because we do a lot of hard work, taking time, getting ready, thinking what to wear and how to style it up.
So yeah, thank you so much for that. तो आप इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर भी आपको अवार्ड मिला तो कौन सा एंटरप्रेन्योर कौन सी कंपनी आपको अगर आप कुछ बता सकें लाइक Entrepreneurs are not basically that who invest in only one firm or they are connected with only one particular area of business. We belong to different areas when it comes to the business thing. So what I used to do earlier was how I was related as an entrepreneur was with food business, and now it is going to be the travel business. So it is for that. तो क्या बात को आप Later. थैंक यू मैम Thank you so much. Go for it. It's okay. आपसे मैं बहुत बार मिल चुकी हूँ इस महीने में आई थिंक आई फील ब्लेस्ड टू फॉर रिसीविंग सो मेनी अवार्ड्स बैक टू बैक इन अ मंथ्स टाइम एंड आई एम हैप्पी एक्साइटेड या सो मैं तो मंथ में काफ़ी नहीं आया इस बार बट या CNBC अवार्ड्स इज ऑल्सो प्रेस्टिजियस अवार्ड्स एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द इवनिंग एंड या I'm sure For the morning. for the For the morning. afternoon actually for the afternoon वो actually awards जा जाके evening की आदत पड़ गई No, but this is a business award. It's a very prestigious award for receiving something from CNBC. We both are excited, and both of us are here together because we both are a part of the company Marzo, and that's the reason I wanted him to be here as well. So excited, fingers crossed. आज के अवार्ड के लिए आपने क्या तैयारी की है? मैंने कुछ ज़्यादा तैयारी नहीं की है मुझे हो रहा है माइग्रेन तो मैंने चश्मा पहना गोली हुआ खाई है है बस। मैंने सिर्फ माइग्रेन की टैबलेट खाई है एंड आई हैव हिम बिसाइड मी टू गिव द स्पीच सो या So, yeah, तैयारी मेरी है मैं उस स्पीच की भी कोई तैयारी नहीं किया अगर कुछ मिलता है तो बढ़िया I'll see I'll just see whatever it comes to my mind ऐसा कुछ तैयारी नहीं किया हमने देखी नहीं है अभी तक लेकिन ज़रूर देखना चाहेंगे आज कल में जब भी टाइम मिलेगा विल बी श्योरली गोइंग टू वॉच इट मेरे डैड ने देखी है बट आई डोंट नो मैं खुद जाकर देखती हूँ कैसी मूवी है बहुत सुना है उसके बारे में क्योंकि जैसे कि अभी कहा जा रहा है कि इसको कोई प्रमोशन नहीं मिला नहीं बट पब्लिक लोगों ने प्रमोशन it has got indirect promotion जो प्रमोट नहीं किया इट इज़ अ वेरी वेरी No, indirect it's a- promotion that's what No, he no, said is right no it's not इसको कोई पैसा नहीं होगी कोई प्रमोशन नहीं मिला विवेक अग्निहोत्री is doing everything possible to promote the film and that's how it has got so good reviews मतलब पब्लिक के रिव्यूज़ मिला के और विवेक डायरेक्टर के रिव्यूज़ मिला के सब कुछ आई थिंक इट्स गोइंग गुड प्रमोशन पब्लिक वर्ड ऑफ माउथ ऑब्वियसली है लेकिन और वर्ड ऑफ माउथ के लिए ही हम लोग देखने जाएंगे जैसे कि राधे श्याम को मोबाइल काफी चल रहा था काफी उसका प्रमोशन वजह से हुआ लेकिन क्या बात है 600 थिएटर्स में रिलीज हुई थी कलमी फाइव वो सबको दिखाते हुए कलमी फाइव ने 3000 थिएटर्स में रिलीज हुई that's a big thing बिकॉज आई थिंक गुजरात गवर्नमेंट ने और एक और गवर्नमेंट ने तो टैक्स फ्री भी कर दिया तो ऑब्वियसली sensitive matter कंटेंट जहाँ पे अच्छा because of the होगा content yes कंटेंट जहाँ पे अच्छा होगा तो कोई भी फिल्म एंड चलेगी इट्स अ नेशनल कंटेंट तो it's a हमारे very- नेशनल कंटेंट पर बनी है मतलब तो डेफिनेटली यू नो नेशन इज सपोर्टिंग इट फिल्म में कहा जा रहा था कि बहुत बड़े स्टार ने कपिल शर्मा की तरफ से इस तरह का मैसेज आया इस तरह से आप क्या I mean, let's talk about the awards because I don't want to get into controversy. Kapil is a dear friend, and जहाँ तक मुझे लगता है वो तो बहुत स्वीट बंदा है, ऐसा कभी बोलेगा नहीं. बट तो कपिल ऑल्सो ट्वीटेड बैक दैट एक साइड की स्टोरी सुन के डिसीजन मत लीजिए ही ऑल्सो ट्वीटेड बैक सो वी शुड ऑल्सो लिसन टू हिज साइड स्टोरी एंड नॉट मेक कमेंट्स ओवर इट one of the most humble person, yeah, Kapil. Why would he do that? So yeah, let's get back to the awards. थैंक
Thank you so much. You don't have anything to ask about the awards, right? Kashmir Files. Thank you. Even thank they you. don't know much about क्या पूछोगे. चलो guys, thank you. Well, it's the style icon of the year, so really happy to receive it. Second award in a month, so it feels really nice, and thank you so much for giving me this award. I guess style is something that it's not about what you wear; it's about how you carry it. It's about how you be unique to your own self. So that's what style is about, and I'm glad that I'm able to be the icon for this. Yes. Yes, that's what second award in a month, so it feels great. Different categories हैं. First I got what did I get? I forgot. But yes, अभी style icon मिला है. So I guess you should always keep experimenting, right? You should spread your wings in every field. So it feels great to be awarded 2 different categories in a month. होली मैं हमेशा काफ़ी सालों से एक्चुअली ड्राई होली सेलिब्रेट कर रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट इट विद इको फ्रेंडली कलर्स एंड इस साल मैं वैसे ही सेलिब्रेट करूँगी. There is a music album lined up with Shantanu for Saregama label, so that's going to come up next month, and there are a few other things in the pipeline. There's something coming up for the OTT platform, so stay tuned. I'll let you guys know about that. इस साल with something very unique, something very different, something that nobody has done before in India. So that's coming up very, very soon. Thank you. बहुत बढ़िया. वो हंस रहे हैं आपके कमेंट पे, देख रहे हो आप? इसका मतलब जो आपने बोला गलत है. वो जो हंस रहे हैं तो उनसे पूछे मैं क्या लग रही हूँ. अरे मजाक कर रहे हैं, डोंट वरी, मजाक कर रहे हैं. बट थैंक यू. आई थिंक आज आई हैड टू लिव अप टू द अवार्ड आई हैव रिसीव्ड. कैन आई गेट माई अवार्ड? आई एम द trendsetter of the year. आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसी इंसान हूँ, मुझे एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता है. और मुझे चाहे वो फैशन हो, चाहे वो मेरे कैरेक्टर्स हों, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो अब जो आगे जो मीडियम आएगा वो हो, आई थिंक आई लाइक टू बिलीव दैट मुझे अगर ये मिला है तो आई एम श्योर उसके पीछे बहुत बड़ा उन्होंने सोच के दिया होगा. दैट आई सेट ट्रेंड्स एंड आई थिंक इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट टू मी. और इट्स फीलिंग एक्साइटिंग. इसलिए आज मैंने कहा कि कुछ एक्सपेरिमेंट भी करना चाहिए. और मुझे सुनने को मिला कि मैं लेडी गागा लग रही हूँ. But yeah, I think I like the fact that I go all out. मैं डिजर्विंग हूँ. हाउ स्वीट, थैंक यू. थोड़ा सा बहुत लोग फियर करते हैं. मुझे ऐसा लगता है जब आप एक टीवी एज अ मीडियम कर रहे होते हो तो आप थोड़े से ना मोनोटोनस हो जाते हो, क्योंकि आप 3-4 साल एक ही टीवी शो कर रहे हो तो आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते नहीं हो. बट दैट्स नेवर द केस विद मी. I want to break away from that and I want to experiment and I want to surprise myself and the people around me. ट्रेंड सेटर है. मुझे लगता है थोड़ी गलती हो गई है अंदर. मुझे स्टाइल दीवा मिल गया है. We'll have to exchange that. We'll change it, no problem.
तो हूँ मैं एक्चुअली ट्रेंड सेटर ऑफ द ईयर एंड बहुत अच्छा लगता है सुनना बिकॉज ये एक ऐसा नाम है जो मुझे आई थिंक आई लाइक द फैक्ट दैट आई गेट टू हियर समथिंग लाइक दिस बिकॉज आसान नहीं है सेट करना ट्रेंड्स एंड आई लाइक द फैक्ट दैट आई हैव बीन अवॉर्डेड एज ट्रेंड सेटर ऑफ द ईयर. क्यों मेरा खुद का पर्सनल नहीं हो सकता मतलब मुझे उनसे इंस्पिरेशन लेनी पड़ेगी अब मतलब ऐसा नहीं है. रणवीर है यार सुरभि है हाँ और आई काइंड ऑफ फील दैट आई हैव नॉट डन समथिंग लाइक दिस एवर और मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ ऐसा अलग करूँ. यू नो यू गेट टू सी सच गर्ल्स ऑन द रैम्प as models, as fashion week में walk करते हुए. So it's an inspired Paris Fashion Week inspired dress. So I'm going to be very honest and I wanted to experiment with my and something exciting. Yeah. मेरे ही है किसी के नहीं है और कहीं से लेके नहीं आऊँगा. Yes. ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है अचीव करना वेरी ऑनेस्टली एंड बट अगर आपकी टीम खतरनाक हो तो हो जाता है. सो आई हैड माई हेयर स्टाइलिस्ट हु गॉट इट टुगेदर एंड इट्स माई हेयर ओनली. इससे पहले कि कोई लोग जंप करे कंक्लूजन्स. डन. ऐसे आप बैठे थे आज बुक लेके ये सुरभि जी आएंगी और सुरभि जी को हम सवाल पूछेंगे. पूछे ना. That's what I'm saying. I kind of feel कि अभी मीडियम भी बहुत हमारे पास वाइडन हो गया है. एक्टर्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं एंड वहाँ पे भी सेट करने का आइडिया है ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ बी इट वेब. आई एम लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दैट. सो लेट्स सी. एक मिनट ये दरवाज़ा बंद हो सकता है क्या? Thank you very much. Thank you. जैसे टीवी एज अ मीडियम में मैंने काफ़ी एक ही शो में जैसे मैं जब अपना पहला शो करी थी उसी में मैंने इतने सारे कैरेक्टर्स प्ले कर लिए. मुझे ऐसा लगा कि टीवी में अब फिर मैं डॉक्टर बन गई, फिर मैं नागिन भी बन गई, सांप बन गई. सो मुझे ऐसा लगा दैट इट्स अबाउट टाइम दैट आई डोंट नो. मैं ना एक्चुअली चलती हूँ अपने इंस्टिंक्ट पे और मुझे मैं ही जाऊँ क्या दरवाज़ा बंद करके. मैं कोई नहीं हो गया. मैं अपनी इंस्टिंक्ट पे चलती हूँ एंड आई फील इफ द स्टोरी हैज़ दैट मैटर मटीरियल मैं करूँगी. कुछ भी हो सकता है वो. आई डोंट नो. इट कैन बी एनीथिंग. सो आई एम not sure what's going to come my way, but I'm open to everything. Actually, very honestly, पता नहीं बहुत लोग जानते हैं कि नहीं, बट मैं आज जब सबको देख रही थी यहाँ पे और सब ऐसे सूटेड थे तो मुझे अपने नो प्रॉब्लम मुझे अपने ऑफिस डेज याद आ गए. मैं काम करती थी बिफोर आई वाज एन एक्टर एंड सबको ऐसे देख के मुझे अपने दिन याद आ गए कि कैसे हम भागा दौड़ी करते थे. यू नो आई वाज अ इवेंट मैनेजर and I used to manage events and I used to manage the international marketing of that event. तो मैंने बहुत ट्रैवल किया है उस चक्कर में और उन सबको मैं ऐसे ही हम लोग को रेडी होके बोलते थे हमारे जो बॉसेस थे that you have to be prim and proper. And today when I look at them I went back to that memory. बट वो मेरी जो अंदर की लीडरशिप क्वालिटी है जॉब को लेके काम को लेके चाहे वो आगे जाके प्रोडक्शन हो कुछ भी हो आई डोंट नो एनीथिंग बट वो होगा बिकॉज वो कभी आई कांट लेट दैट डाइंग एंड दैट्स गोइंग टू हैपन. आई हैव अ फीलिंग कि मैं क्या पता बहुत जल्द अनुष्का शर्मा के पाथ पे जाऊँ. आई लाइक द वे दैट शी इज़ अ प्रोड्यूसर एंड आई लाइक द फैक्ट दैट लॉर्ड ऑफ आलिया नाउ इज़ अ प्रोड्यूसर एंड आई थिंक उनसे इंस्पिरेशन लेना क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री के बारे में जानती हूँ तो आई थिंक दैट माइट जस्ट बी माई फ्यूचर प्लान. सो बिजनेस वूमन ऑफ द ईयर हो सकता है. यस बेस्ट प्रोड्यूसर. थैंक यू फॉर आस्किंग दैट. थैंक यू.
होली मैं खेलती नहीं हूँ, मैं होली की विश भी नहीं, सच बात है, क्योंकि आई एम अगेंस्ट होली। उम्मीदें बढ़ रही हैं। और बोलो, करती जाऊंगी आज पूरी रात, पूरा दिन यही करती रहूंगी। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू। आप लोग को होली की शुभ। कैसे होगा? हाँ जी। मैं दिख भी रही हूँ। सॉरी। हाँ, ओके मैम, आप सब बहुत ब्यूटीफुल आप लग रही हो, तो कुछ आप बताना चाहिए आज आपको नॉमिनेट किया गया है, किस कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया वो बता। यूथ आइकन के लिए किया गया है एंड आई होप कि मैं यूथ आइकन हूँ, होपफुली। लेट्स सी क्या होता है, फिंगर्स क्रॉस्ड, क्योंकि बहुत सारे फैंस हैं जो बोलते हैं मुझे दे लुक, मतलब मेरा कंटेंट देखते हैं, इंस्पायर होते हैं मुझसे, तो शायद यूथ आइकन में हो सकती हूँ, बाकी लेट्स सी। ओके, यूथ आइकन है तो आपको क्या लगता है आप में अच्छी क्वालिटी है, दो बेस्ट क्वालिटी अगर आप बता सकें? दो बेस्ट क्वालिटी। पहली बेस्ट क्वालिटी मेरे में ये है, जो मुझे नहीं पता, मैं नहीं कहती ये, ठीक है, क्योंकि मैं अपनी मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं हूँ, पर मुझे ये पता है कि लोग मेरे बारे में ये कहते हैं कि आई एम वेरी कंसिस्टेंट। बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए एक साथ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हर जगह कंटेंट डालना है, तो आई एम वेरी कंसिस्टेंट, हर जगह मैं अच्छे से कंटेंट डाल देती हूँ। उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। कल भी रात को 4 बजे तक हम लोग शूट कर रहे थे, तो राइट, एक ये चीज़ है कि मैं काफ़ी कंसिस्टेंट हूँ, और दूसरी चीज़ जो लोग ही बोलते हैं मेरे बारे में, आई डोंट से इट, दैट आई एम वेरी हार्ड वर्किंग। जिससे मैं बोलती हूँ, मिलती हूँ, मुझे ये बोलते हैं यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, तो कंसिस्टेंट एंड हार्ड वर्किंग। मैंने क्या तैयारी करनी है, मतलब मैं बस अपनी फिंगर्स क्रॉस्ड करके दिल पे हाथ रख के बैठी हूँ, लेट्स सी मिल जाए मुझे अवार्ड और क्या। ये होली आने वाली है, कल रात को ही हमने शूट किया है होली का वीडियो, और आज आ जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे 4 बजे। तो और होली का बहुत सारा कंटेंट हम लोगों ने शूट किया है। मैं होली के लिए मतलब सारे ही फेस्टिवल्स के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड रहती हूँ, होली के लिए भी मैं उतनी एक्साइटेड हूँ। हमारा सॉन्ग भी आने वाला है शायद, अगर होली के शायद वो थोड़ी बाद आए, आई एम नॉट श्योर, पहले भी आ सकता है, बट बहुत सारी चीज़ें हैं लाइंड अप। ठीक है, 1 मिनट इसमें पहले खत्म।
वेरी हैप्पी टू बी हियर। और जो कैटेगरी है जिसमें मुझे नॉमिनेट किया है, मोस्ट प्रॉमिसिंग फेस ऑफ द ईयर, आई थिंक इट्स वेरी वेरी स्पेशल एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। सबसे पहले अवार्ड का सुनकर क्या ख्याल में आता है, जितने भी पहले अवार्ड्स मुझे मिले हैं, जितने भी अवार्ड फंक्शंस मैंने अटेंड किए हैं, वो सब का फ्लैशबैक आता है मुझे ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो। एंड हर अवार्ड फंक्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है, भले ही मैं उसको सिर्फ अटेंड कर रही हूँ या उसमें अवार्ड रिसीव कर रही हूँ। सो ओह, ये साल का तो 3 महीना निकल गया, पता भी नहीं चला है। तो इट्स जस्ट time is flying like every year, or I'm looking forward for more award functions and more interaction with you guys this year. Thank you very much. आपके